CSTP, the Consistent Synthesis Training Program. This is the program which I launched during the COVID lockdown and is one of the very popular programs. Popularity by default because it yielded extreme success in skilling your writing practice, in generating art of writing. जब से प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ है 2023 का, हम सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अब हमें मेन लिखना है और मेन की तैयारी करनी है. बट फैक्ट तो ये भी है कि देयर आर मेनी ऑफ अस हु कुड नॉट मेक इट दिस ईयर. तो अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं था तो आपने डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को हॉल्ट नहीं करना है. द प्रिपरेशन रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, द प्रिपरेशन रिक्वायर्स राइट डायरेक्शन ऑफ वर्क. ये जो 1 year सिंथेसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, it inculcates art of answer writing with you. When I have to talk about this program, it basically is designed to take into reference पूरा syllabus का revision in a time bound manner. जब आप अपने आप को और अपनी preparation को एक right track पर डालते हो, then only you can accelerate. If you are not on right track, you actually are realizing or not realizing, you are unnecessarily wasting your efforts and time. So I am here to talk about some of the important features that correlates with it. As I just said, it's 1 year of answer writing program. So in this 1 year of answer writing program, you will be provided with a range of questions every Sunday. So it will be weekly kind of test orientation that you'll be getting. Every week, we will be providing you 5 to 6 questions. So it actually goes in the frame of 5 to 6 questions per week. और इसी को आप मल्टीप्लाई कर लो, you can easily take 20-25 questions per month. अच्छा, क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे होगा वो हम आपको अभी समझा रहे हैं, शेड्यूल ओपन करेंगे. When I try to take up the nature of its planning, तो यूपीएससी के हिसाब से ही हम यहाँ पर 20 मार्कर, 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे. ये नंबर हमने आपको बता दिया, मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. वी विल बी टेकिंग द डिस्कशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी ब्लॉक. नाउ व्हेन आई से एवरी ब्लॉक, आई एक्चुअली मीन कि वो ब्लॉक जिसको आप उस पर्टिकुलर मंथ में कवर अप कर रहे हो, है ना. सो अ पर्टिकुलर मंथ से सपोजेटली आई एम डन विद 4 टेस्ट, 5 टेस्ट, 6 टेस्ट, व्हाटसोएवर वाज शेड्यूल्ड, देन यू आर गेटिंग ऑन टू द रेफरेंस ऑफ ब्लॉक डिस्कशन टू इट. तो आप ये ब्लॉक डिस्कशन को कोरिलेट करेंगे तो ये आपको किस चीज में सपोर्ट कर देगा? ये आपको सपोर्ट कर देगा व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटन. Supporting study material by default is included in this, but you need to understand that supportive study material के साथ आपको वो 4000 पेजेस का हमारे क्लास नोट्स जो हमने पहली बार रिलीज किए हैं मस्ट रीड है, उसको आप कहीं से भी मिस करने की गलती मत करना. So when I ask you to take the reference of this model answer frame provided, evaluation done, and I don't need to repeat, it is me who will always be dealing up with the things. तो आपका एक जो full proof preparation है वो justified हो जाता है, ठीक है. And I want to add something more to it. So अगर हम आपको इस consistent training program की थोड़ी details बताएं तो आप बड़े ध्यान से देखो. It basically will be the features that we have included. So the answer writing which will be by default including art. You will be enriching your art of answer writing. ये बहुत important है. अब when I scroll it up, हमने इसको किस तरह से डिजाइन करा है उसके बारे में बात बताएं तो आप बहुत ध्यान से देखो. We incorporate additional tips to content development, presentation and time management. कि भाई 10 मार्क के क्वेश्चन को आपने 7 से 10 मिनट में खत्म करना है तो यू आर टेकिंग दैट प्रैक्टिस, illustrations, case studies included in all that, so it is there. I'll be providing you the feedback classes every month, which I have said that it will be with the completion of a block. अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि भाई ब्लॉक क्या है, what is the discussion block that we are taking up. So let me just scroll it up. We'll be beginning it from 16th July. तो अगर ध्यान से देखो 16th जुलाई से जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो हमने एक ब्लॉक डिसाइड करा है. अब ये ब्लॉक क्या है? ये ब्लॉक है ओशियानोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड इंडियन क्लाइमेट से हमने ये 3 टॉपिक्स ले लिए. इन 3 टॉपिक्स को हम 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में कवर अप करेंगे. तो नोटिस करो
कि 16 जुलाई का जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड है। बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, टेम्परेचर, सैलिनिटी ऑफ द ओशन, हीट एंड सॉल्ट बजट ऑफ द ओशन। मतलब आप एक हफ्ते में ये डिफाइंड टॉपिक्स तैयार कर रहे हो, आप उसके बारे में लिख रहे हो, आपको उसका एक मॉडल फ्रेम ऑफ आंसर मिल रहा है, एंड वंस यू आर डन विद इट, तो मुझे यहां पर 5 संडेज मिल रहे हैं, तो 23rd को हम बाकी टॉपिक्स ऑफ ओशियानोग्राफी का कवरिंग नोटिस कर रहे हैं। 30th जुलाई को हम आ गए क्लाइमेटोलॉजी पे। आप नोटिस करोगे इसमें मैक्सिमम हमने कवर करा है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। 6 अगस्त को हम वेदर मैकेनिज्म एंड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को एसोसिएट कर रहे हैं, और जो फाइनल टेस्ट होगा आपका वो अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इंडियन क्लाइमेट के बारे में सारा कुछ, रेनफॉल पैटर्न, क्लाइमेट, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ इंडिया। सोच कर देखो, जब आपने ये वाला ब्लॉक कर लिया, आपने एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस को रिवाइज कर लिया। इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए हम फिर से बोल रहे हैं, द हैंड रिटन नोट्स दैट आई हैव रिलीज्ड इन द मार्केट, आप मत लो मुझसे, डोंट टेक इट फ्रॉम मी। आप सीधा जाइए किसी भी प्रोमिनेंट बुक शॉप पर, इट्स अवेलेबल देयर, गेट इट ऑन दी जेरोक्स कॉस्ट। जो भी कुछ पढ़ रहे हो साइड में सबको हटाओ। मार्क्स बढ़ाना है, मार्क्स अटेन करना है, दैट नोट्स इज मस्ट। आपने मेरे पास क्लास किया, आपके पास वो नोट्स है। अगर 2 साल पहले किया है तो थोड़ी अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आप अपने आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। जिन लोगों को स्टडी मटेरियल की कमी लगती है, इट इज अ मस्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। इफ आई जस्ट स्क्रॉल अप टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तो मेरा पहला ब्लॉक हो गया ओशियानोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन क्लाइमेट। जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा, विल टेक द ऑनलाइन डिस्कशन विद आंसर फ्रेम, किसमें क्या लिखना था, आप लोगों ने क्या क्या गलतियां करी। उसके बाद हम आ जाएंगे बायो एनवायरमेंट ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इंडियन वेजिटेशन। और आप नोटिस करते जाइए, एंड आई एम इंसिस्टिंग ऑन इट, कि हम हर टॉपिक को बहुत क्लियरली हर हफ्तों में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब आप एक ओपन एंडेड टॉपिक नहीं, बायो ज्योग्राफी तैयार कर लेना, किसी एक गिवन हफ्ते में आपको यही वाले टॉपिक्स तैयार करने हैं, एंड दिस इज हाउ यू गेट ऑन टू द प्रिपरेशन। इफ आई फर्दर स्क्रॉल ऑन, सो ये मेरा सेकेंड ब्लॉक हुआ। देन पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, थर्ड ब्लॉक आ गया। यहां पर भी नोटिस करो, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहां डिवाइड कर दिया है, डाइकोटमी, डुअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन विद लोकेशनल एनालिसिस। मतलब आप 17 सितंबर के टेस्ट में सिर्फ इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आओगे। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी अ फुल प्रूफ अप्रोच? पर्सपेक्टिव जैसे टॉपिक जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, उसको हमने कम से कम इतने इलाबोरेट परव्यू में जगह दे दी। इलाबोरेट में आप 4 टेस्ट तो बिल्कुल क्लियरली इसके साथ एसोसिएट कर लें। जो हम 8 अक्टूबर और 5 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो विद लॉज, थ्योरीज इन मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि ये वाले टॉपिक को भी आप हमेशा पर्सपेक्टिव के पॉइंट पर ही एक डिफिकल्ट टॉपिक के तौर पर मानते हैं। कुछ एप्लीकेबल टॉपिक्स भी ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्युलराइजेशन, ताकि एक कंसिस्टेंसी ऑफ द रिवीजन बना रहे। सो वो वाला चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके आगे ब्लॉक में बढ़े तो वो कंटिन्यूटी में पॉपुलेशन सेटलमेंट दिखेगा। हमने अटैच कर दिया है पीडीएफ, आप नोटिस कर लेना इसको। कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट एंड रीजनल प्लानिंग ऑफ इंडिया। बेसिक लॉजिक इसका बस यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक टाइम बाउंड मैनर देकर एक अच्छी तरीके से, एक सिंसियर तरीके से, रेगुलरिटी के साथ प्रिपेयर करो। हिम्मत नहीं हारनी है। वी विल नॉट गिव अप। वी आर बिलीवर्स ऑफ द फैक्ट दैट आई कैन, इफ समवन एल्स कैन डू, I will also do, and you have to keep that tempo up to precisely make out maximum here. इसलिए 16 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। अभी टाइम ले लो, रिलैक्स कर लो, अपने आप को रीवैम्प कर लो, बट उसके बाद शुरू कर देना है। ये पूरा डिसाइडेड शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को आराम से ले सकते हो। थोड़ा सा जूम अप करके दिखा रहे हैं, प्रीलिम्स ब्रेक भी देंगे आपको इन बिटवीन, ताकि आप बड़े आराम से अपनी रिविजन स्ट्रैटेजीज को जस्टिफाई करो। और नोट, 4 अगस्त तक आप फ्री हो जाओगे इस पूरे टेस्ट प्रोग्राम से। सो आप अपने आप को फुली तैयार कर लोगे बिफोर यू गेट ऑन टू योर मेन आंसर राइटिंग। आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट विद ज्योग्राफी ऑप्शनल विलिंग टू राइट 2024 मेन एग्जामिनेशन, होपफुल ऑफ राइटिंग, कैन अफोर्ड टू मिस इट।
I welcome all of you on board. Come join Direction Squad and see the difference that we create when it comes on to all flashing light every time. Because जो गुरु और शिष्य का एक Indian cultural domain है, I am a very clear supporter of it. I don't believe in the flashlight culture. Happy learning. Bye-bye from my side.